So we'll be doing here onwards, that is significant figure. Up to 9th and 10th, we don't put much of attention here actually. Okay. Significant figure is not that much required in 9th and 10th standard. But here we are going to have this one. Significant figure. Joy, color is okay, but the red and blue, can you see? Yes, sir. Okay. Okay. So now, so significant figure. Let me start this. I hope all of you are concentrated here, focusing here, because today I told to keep your video off because then you will have a clear video from my side. Okay. Those who wish, they can keep their video on, but those who don't want, they can keep their video off. It's not compulsory. Okay. So just say. So I hope is this okay? Significant figure, everybody. Why we need this? First of all, why we need this significant figure? Let me take you a few examples that will give you an idea why we need this topic in physics or in chemistry or in any calculation, in fact. Okay. So let me, yes. So let me take this. Let's say we have a scale here, or as a good student writes everything, whatever is on the board. Okay. So keep that in mind. The quality of one of the quality of a good student is this only. Okay. So let's say we have a scale, and let's say scale we have marking is there. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So it's a centimeter, 6, 7. So let's say I want to measure the length of one stick here. Let's say we have a stick like this. We have a stick like this. We want to measure length of this stick. Okay, so you can see here. If you want to measure length of this stick, so one end we keep at 0, second end it is here. So if I ask you, tell me the length of this stick. So you can say this, it is almost, you just by your eye approximation, by your eye, you can say it will be almost 4.5. So it will be almost 4.6. So length is going to be 4.6. You can say this. But if I ask you, are you sure? The moment I use the word, are you sure? You will say, sir, I'm sure about the 4. I'm sure about the 4, but I'm not sure about the 6. Okay. You will say this. Yeah, I'm sure about the 4, but I'm not sure about the 6. The moment I ask the question, are you sure? You'll say, I'm sure about the 4, but not sure about the 6. It can be anything between, let's say, 4.5 to 4.7. Okay. So what here? So I am sure about the first digit, but I'm not sure about the second digit. But if someone says more accurately, it is almost 4.65. Sir, okay, length of this rod will be 4.65. Again, I asked, are you sure? He will say, no, sir, I'm not sure, but I'm sure about the 4, I'm sure about the 6. So
Now, if I ask you which one is more accurate measurement, this 4.6 or 4.65? Here the two digits are compulsory, means these two digits 4.4 and 6 are the certain, means it is means that that experimenter is basically very much sure about 4 and 6 but not sure about 6 or 5. So he says, it will be in between, anything in between 4.63 to 4.67. So just see here, these two digits are, that experimenter is sure, yeah, it will be 4 and 6. So the digits which are the experimenter which is sure is called certain digits. तो इसको हम लोग बोलेंगे certain number or digit. It is certain digit. इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट में सिर्फ only 4. This is certain, this is certain. The second digit is not, it is uncertain. This is here also, the second digit 7, 3 is uncertain. Okay. So if I ask you which is more accurate, this or this, which one is more accurate measurement? Samruddhi, which one is more accurate? आवाज आ रही? हेलो, हेलो. हाँ सर, आ रही है आवाज. Samruddhi, so which one is more accurate? Yes. So this is more accurate. Yes, Yes. sir. Continue. So which one is more accurate, this or this? So the second one. Second one. So right, everybody. Because यहाँ पे दो, I think 4.6 is certain. Here just 4 is certain. So this is more accurate measurement. Okay, so we can say this. If this is more accurate means यहाँ पे देखो जितने certain means number of certain digits जितने ज्यादा होंगे उतना accuracy ज्यादा होगा. यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही है certain digit. इसमें दो certain digit 4 and 6. 4 and 6 here. Here just 4 is the certain. So this measurement is more accurate. ठीक है? Now let me take another example. That is, if I ask you, how much is Kalyan from here? Can you tell me the distance of Kalyan from here? So let's say somebody says it is almost, so let's say distance of Kalyan. Kalyan. Let's say it said almost 120 kilometers. Again, I asked, are you sure? So the person says, no, I'm not sure. I'm sure about, it is anything between 118 to 125. It is in between these two. Someone says, okay, ये first objects. Second says, distance of Kalyan from here is, let's say, 125 kilometers. Second person said it is 125 kilometers. Again, I asked, are you sure? So he says, no, I'm not sure, but I'm sure it is between 122 to 126. So just see here, the here the 1 and 2, this is a certain digit. So 12 is a certain. Here 11
and 12. यहाँ 11 भी आता है, 12 भी आता है. तो this is less accurate measurement. This is more accurate measurement. Okay. So this is certain digit CD. It is certain digit, but the last one, this is uncertain. Okay, everybody. Sir. So for this, what we say? So number of certain digits, जितने ज्यादा certain digits होंगे उतना accuracy उतना ही ज्यादा होगा उस experiment का. जितने certain digits जितने कम होंगे उतना ही uncertainty अधिक होगा. So in significant figure, what we do when we do the calculation in a significant figure, what we do? We try to measure the given experiment up to maximum accuracy. जितना ज्यादा accuracy होगा, that is always required. The accuracy of any experiment, measurement of accuracy of any experiment should be very high. So significant figure tells you how much accurate that measurement is. Clear? Significant figure of any experiment tells you how much accurate is this. Let's say for some experiment, significant figure is 1. For second experiment, significant figure is 5 or 4. So anybody can say that the significant figure having 4 is more accurate than the significant figure having 1. Clear? Everybody? Vaishnavi, clear? Yes, sir. So the more the number of significant figure, more is the accuracy of that experiment. Then how to find the significant figure? So basically, the number of certain digit and the first uncertain digit together are called significant figure of any experiment. So please write everybody. इसको लिखना है तो लिख लो, ठीक है? Please write this and then I will dictate the definition. Write it down. Okay, done. So लिख लिया सबने? Done, everybody?
Yes, sir. So please write the definition of significant figure. Samyak, done? Yes, sir. So please write the definition of significant figure. So please write the number of significant figure, the total number of significant figure and the first insignificant figure is called sorry, very sorry, एक second, just repeat it. Number of certain digits and the first uncertain digit is called significant figure. उसको करेक्ट करो. Number of certain, ये जो लिखा है मैं यहाँ पे, number of certain digit and the first uncertain digit is called significant figure. तो यहाँ पे I think यहाँ पे if you just see this one is uncertain. This one 2 is uncertain here. 6 is uncertain. So if I ask you here in this how many significant figures are there, इसमें तो certain digit 4 है और uncertain 5 है, तो this is 2, this is 2, यहाँ पे 3 हो गया, this is 3, यहाँ पे 4 हो गया, नहीं, it is again 3, 2 plus 1, 3, 3. So just see. So number of certain digit and the first uncertain digit is called significant figure. Clear everybody? सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा उस एक्सपेरिमेंट का एक्यूरेसी भी उतना ज्यादा होगा. ओके? Yes, sir. ओके. सो नाउ वी हैव सर्टेन रूल्स. अगेन अभी हम लोग कुछ रूल्स हैं that will follow for the finding the significant figure. Okay, so give the heading rules for finding the significant figure. Rules for finding significant figure. ठीक है? फर्स्ट रूल क्या है उसमें? First, again, just see. First rule. All non-zero digits. All non-zero digits are all non-zero digits are always significant. So you got the idea why we need the significant figure. Now we are going for the rules. So all the non-zero digits are significant. First rule. Means जैसे हम लोग क्या करते हैं, we use the डेसिमल सिस्टम जिसमें क्या है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9. तो 1 to 9 अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर रिजल्ट 1 to 9 के बीच आता है, so all those numbers will be significant. Then let's say अगर 0 आता है तब क्या? तो second rule if 0 comes in between two non-zero digits, if 0 comes in between two non-zero digits, which is called trapped 0, that is called trapped 0. मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 ट्रैप हो गया है.
So that is called trapped zero. Will be always significant. Will be always significant. ठीक है? Third rule. Leading zero never significant. Leading zero is never significant. Fourth rule. Trailing zero. क्या? सम्यक? रिपीट करो सम्यक क्या? Leading zero is never significant. सम्यक, leading zero is never significant. Okay. सर Okay. हाँ. सर अगर कोई नंबर की एक्यूरेसी हो 0.123 और दूसरी रेंज का अदर हाफ हो 1.123 तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा? उस पे आते हैं ना हम लोग. Will come. Just a minute. ओके. सो वो जो तन्मय जो पूछ रहा है तो उसके लिए हम लोग आते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके तन्मय. हाँ सर. Okay. So here the leading zero is always non-significant. Next is trailing zero. Fourth is trailing zero. Trailing zero. देखो ट्रेलिंग जीरो जो मतलब जो जीरो बाद में आता है नंबर के, तो ट्रेलिंग जीरो में दो है. ओके. इफ डेसिमल पॉइंट इज देयर, अगर ट्रेलिंग जीरो में इफ यू हैव अ डेसिमल पॉइंट, इफ डेसिमल पॉइंट इज देयर देन इट इज सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग जीरो जो जीरो बाद में आता है. ठीक है. और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है देन इट इज नॉन सिग्निफिकेंट. नो डेसिमल पॉइंट देन नॉट सिग्निफिकेंट. कहने का ये है, देखो यहाँ पे कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये 2.00 ऐसा आ गया, तो देखो इट इज अ ट्रेलिंग जीरो. तो डेसिमल पॉइंट आते ही दिस बिकम सिग्निफिकेंट. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया. वही अगर आ जाए 200, देयर इज नो decimal point, so it will be 1 only, then 0 will be insignificant. So here the significant figure here becomes 1, here becomes 3. Okay. Clear है तन्मय? हाँ सर. Second, by changing the next the fifth point, everybody, fifth point,
by changing the system of unit, by changing the system of unit, significant figure does not change. मैं तुम लोग को अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे भी मान लो कि 1500 सेंटीमीटर है। अच्छा हाँ, एक चीज और 1.500 मीटर है, लेट्स से 1500 मतलब 1.500 मीटर है। तो इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट मतलब इनिशियली तुमको देखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इसमें। तो हियर द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4, okay. Trailing zero will be significant if there is a decimal point, okay. तो 4 हो गया। अभी मान लो किसी ने कहा कि मैं इसका यूनिट में चेंज कर रहा हूँ, यूनिट क्या हो गया, लेट्स से उसने किया 1500 मिलीमीटर। आई थिंक ये और ये सेम है, देखो तो इट इज मीटर, इट इज मिलीमीटर। 1500 मिलीमीटर और 1.500 मीटर, दे आर सेम। बट what he has done, he has changed the system of unit, मीटर से आ गया है मिलीमीटर पे। तो यहाँ पे कोई देख के बोलेगा कि यहाँ तो कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ट्रेलिंग जीरो इज नो मोर इंपॉर्टेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2। तो नो, अगर हम लोग यूनिट के टर्म्स में, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट है तो सिस्टम ऑफ अगर यूनिट को हम लोग चेंज करें तो सिग्निफिकेंट फिगर विल रिमेन सेम। यहाँ भी 4 ही होगा, इस जीरो को भी हम लोग काउंट करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, इस जीरो को भी हम लोग काउंट करेंगे। सर हाँ, फिर अगर मिलीमीटर से मीटर में किया तो 2 होगा क्या? नहीं, you have to see कि what the information experimenter has given you at the first moment। अगर फर्स्ट मोमेंट अगर उन्होंने ये दिया हुआ है, अगर मान लो कि एक्सपेरिमेंटर ने तुमको दिया है कि माय एक्सपेरिमेंट शोज द रिजल्ट 1500 और लेट्स से अगर एक्सपेरिमेंट ने दिया कि इट इज 1.5 मीटर दिया तुमको फर्स्ट टाइम, ठीक है। समय फर्स्ट टाइम अगर कोई एक्सपेरिमेंट ने कहा कि द एक्सपेरिमेंट व्हिच आई परफॉर्म ड्यू टू दैट आई गॉट द रिजल्ट इज 1.5 मीटर, तो हियर व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर 2, ओके। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्लियर। तो यहाँ 1 और 5 आर नॉन जीरो डिजिट्स। अभी इसको फिर मैंने चेंज किया 1500 mm में, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर फिर 4 नहीं, यहाँ पे 2 ही रहेगा। मतलब फर्स्ट हैंड में तुमको सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है फर्स्ट हैंड में, दैट विल बी योर सिग्निफिकेंट फिगर, दैट विल कंटिन्यू इन बाय चेंजिंग व्हेन वी आर चेंजिंग द यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने बोला है कि 1.500, so that experimenter is taking care of the accuracy, significant figure is all about the accuracy, ठीक है सम्यक। means that experimenter is saying you कि it is a 4 means it is more accurate because significant figure is more, so this is more accurate। but यहाँ पे the experimenter is saying नहीं, it is 2, so it is less accuracy, this has got less accuracy than this। यस समझा। So that depends which data they have given you at the first hand, ठीक है तन्वी। सर Yes, sir. हाँ यस तन्मय।
सर अगर समझो अगर दिया है कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का सिग्निफिकेंट जो है वो 1 आएगा, पर अगर Right. हम उसे सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो उसका हाँ 4 और 6 और 7 बढ़ते जाएगा। तो 1 राइट। किलोमीटर को स्टार्टिंग में कितना लिखना है? हाँ नहीं, तो दैट डिपेंड्स कि तुम कितना एक्यूरेसी तुम चाहते हो। if you want to if you want the result to be more accurate, then you write, let's say somebody says कि नहीं, I'll write 1 kilometer only, so here the significant figure will be 1 only। तुमने इसके बाद तुमने 1000 मीटर भी तुमने अगर लिखा तभी इसका 1 ही मतलब रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। हाँ सर। लेकिन if you want the experiment to be more accurate, if you just take 1.00 kilometer, means here the significant figure becomes 3। Now if you change it, so it is how much? 1000 meter होगा। So here also the for a significant figure I'll count this 3 only, because फर्स्ट हैंड में जो एक्सपेरिमेंटर ने तुमको जो रिजल्ट दिया है, दैट रिजल्ट विल बी टेकन एज अ बेस, कि दैट इज द बेस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। सो बाय चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट, the accuracy will not change because we are not performing the experiment, we are just changing the unit। जिस जिस पर्सन ने एक्सपेरिमेंट किया है, he has taken care of the accuracy। clear? हाँ सर। So हाँ, if you are of yes Vaishnavi। Sir, if suppose we are given that the convert it in kilometers, so we'll go like 0.001001. Right. So in that the significant figure won't change, no? No, Because so it is that's what I'm going in saying। decimal, so then it won't change. No? हाँ, right. So that's what I'm saying कि Sorry. initially which significant figure the experimenter had given you, that will decide the accuracy। Clear? Sir, but if units are not there, then it will change, no? Yes, yes। If unit is not there, then it will change। Correct। So अगर मान लो कि यही कि किसी ने कहा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि it is 1000, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, और वही किसी ने कहा कि इट इज 100.0, तो इसका 4 हो जाएगा। Okay, sir. So unit plays very important role, and in physics or in any measurement, units are always going to be there। Okay, Isha? Yes, sir. Krishi, okay? Yes, sir. Tanvi, Samruddhi, Yes, sir. Yes, sir. Sia, Yes, sir. Divyanshi, Yes, sir. अभिजीत, आवाज आ रही तुमको कि नहीं? हाँ सर। हाँ, okay, ठीक है। The last rule, okay? The fifth we have done, now sixth one. So please write. Trailing zero with unit will be always significant। Trailing zeros with unit will be always significant। And क्या ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो ये लिखो, ट्रेलिंग जीरो विथ यूनिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जैसा मैंने यहाँ पे किया। दिस इज ट्रेलिंग जीरो, इट हैज गॉट यूनिट, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। क्लियर?
And the last one, actually मैं उसी को एक में ही करता, लेकिन ठीक है, we'll just write separately. The last one, if result is written in scientific notation, then that is insignificant. If results are written in scientific notation, then it is insignificant. Okay, means what? Let's say 2.3 into 10 raised to power 5. ठीक है, 2.3 into 10 raised to power 5. So here this will be insignificant. You will have, this will be your significant figure, that is 2. Okay, now after this, once we have done it, now what we do here, basically I'll just take few questions, okay, and you have to write the answer. And the for homework I'll be uploading the sheet in the group, so you can go through that problems actually. So just solve these questions quickly. In these questions you have to find the significant figure. Okay, so let me write. Question is like this. देखो ये, so quickly complete this. Write the significant figures here. Let me know if done.
Okay, so I'll ask one by one. Okay, so give me the answer. ईशा फर्स्ट में क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर? 4. आई थिंक ये 5 होगा ना. 5. Trailing zero is significant if there is a decimal place. Okay. Yes. तन्मय सेकंड में सर 6. 2 4 5 5 ओनली ना. सर लीडिंग डेसिमल वाले जीरोस आते हैं ना? हाँ, वो स्टार्टिंग का जीरो भी काउंट किया मैंने. ये लीडिंग है ना ये जीरो. हाँ सर, वो नहीं देखा. Leading zero is never significant. Trailing zero is significant if there is a decimal place. ठीक है. Sir, हाँ. sir, but in the second one, the leading zero is the zero before decimal point, right? No. Trailing zero is called what? The non-zero, the zero after the non-zero digits are called trailing zero. Yes. तो यहाँ पे कोई non-zero digit नहीं है. Okay. हाँ, yes. It will be from here. It is a trapped zero, and it is between two non-zero digits. सर मतलब जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आता तब तक सारे जीरोस लीडिंग जीरोस ही कंसीडर किए जाने वाले. हाँ. Okay, next follow. एक second. Let me ask. Divyanshi, next. Sir, 5. 5, correct. So यहाँ अच्छा next is this 5, yes. Correct. Sia, next. Sir, 5. 5, right. Samruddhi, here. Sir, 3. 3, correct. Yes, Vaishnavi, here. 0.007 gram. 0.007 8 आगे का दिखाई नहीं दे रहा सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा. Gram है. It is gram. It is Okay. gram. 3. Yes, it is 1 na. हाँ, yes, 1. Leading zero is never significant. चाहे वो ग्राम हो चाहे नहीं हो. Yes, Krishi, Sir, 4. 4, correct. Tanvi, next. 4. 4, correct. Samyak, next. 5. Joy, here. सर 1. 1. Okay, Isha, here. Next again. Second turn. 2. 2. This will be not significant. सिर्फ ये significant होगा, ठीक है? Yes. Abhijit, this one. सर 3. 3. अम्मे किधर गया? Okay. अम्मे है क्या? नहीं है. Okay. Tanmay, this one. सर 5. 5. Correct. Divyanshi, this one. 3. 3. Sia, 4. 4. समृद्धि. Sir, 2. देखो यहाँ पे यूनिट आ गया केजी. केजी यूनिट आने के बाद ट्रेलिंग जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. यूनिट अगर लिखा मैंने, देखो आई थिंक 6th वन ना, देखो 6th जो रूल है,
कि ट्रेलिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ यूनिट। आई थिंक कुछ इस तरह लिखा है ना हम लोगों ने, देखो तो यस सर। समृद्धि देखो नोट्स में। Yes, sir. तो हाउ मच बताओ सिग्निफिकेंट फिगर? ये Sir, 4. 4, राइट। वैष्णवी Sir, 2. 2। अभी देखो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि डेसिमल प्लेस भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है, तो सिर्फ ये हो जाएगा 2। यूनिट होता तो देखो यहाँ पे था यूनिट, तो 4 हो गया, यूनिट नहीं है तो 2 हो गया यहाँ पे। ओके तो ना इस पे मैं शीट में शेयर में करूंगा, तो वहां से फिर सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज, जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो अनसर्टेन डिजिट होता है, तो अनसर्टेन डिजिट्स आर ऑलवेज गोइंग टू वी ऑलवेज राउंड इट ऑफ। सबने किया भी होगा पहले भी तुम लोगों ने, जैसे तुम लोगों ने पहले किया होगा कि 2.52, तो दिस इज एज गुड एज 2.5, ये है ना। तो इट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, दिस इज नोन एज राउंडिंग ऑफ। तो इन अ calculation based on significant figure, we always do the rounding off of the uncertain digit। जो अनसर्टेन है डिजिट उसका हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। ओके सो गिव द हेडिंग। so next part is rules for rounding off, rules for rounding off of uncertain digit। तो ये मैं क्वेश्चन से ही मैं एक्सप्लेन में करता हूँ ये, ठीक है। हम लोग इसके लिए रूल्स लिखेंगे नहीं, ठीक है। जैसे फर्स्ट मान लो यू हैव 6.32, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विच वन इज अनसर्टेन हियर डिजिट? तो जो लास्ट डिजिट होता है दैट इज अनसर्टेन, है ना। हियर द सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, तो लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। ये दिस इज दीज टू आर सर्टेन, दिस इज अनसर्टेन। and in rounding off we always do rounding off of uncertain digit। certain को हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है। तो when we do the round off of uncertain digit, if that digit is less than 5, तो मुझे अभी इसको ड्रॉप करना है, this digit is less than 5, तो क्या होगा, the लीडिंग डिजिट, इसको बोलेंगे हम लोग लीडिंग, जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके पहले वाले को हम लोग बोलेंगे लीडिंग डिजिट, ठीक है। तो अगर जिस नंबर को हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, इफ दैट इज लेस देन 5, then there is no change in the leading digit, or it will remain 6.3। clear? second question, let's say 5.934, तो यहाँ पे अनसर्टेन डिजिट कौन सा है इसमें? So here I hope the last one is uncertain, so this is uncertain, इसको मुझे round off करना है। So when we do the round off, and if that digit is less than 5, then the leading digit is not going to change, so it will remain as 5.93। clear? So Yes. it is your first rule, this is your first rule। आई होप क्वेश्चन से सबको समझ में आया। लिख लो ये फर्स्ट रूल, क्वेश्चन से ही लिख लो, मतलब वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट दैट मच useful। I think you can remember it by yourself, so it's not required। तो क्वेश्चन से लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको।
second rule, let's say अभी जो rounding off जो digit है, if that is more than 5, then leading digit is going to increase by 1. I hope ये सबको मालूम हो, तुमने किया भी होगा ये. If rounding of digit is more than 5, then leading digit changes by 1. Let's say 7.86. So here, which one is uncertain? So this 6 is uncertain. 6 is uncertain. So this we have to round it off. So 6 को करना है round off. It is more than 5. So here the leading will increase by 1. So 7.9. Clear? Next example, if I take, let's say 5.937. Here, this is uncertain. The last digit is uncertain. Okay. तो मुझे इसको round off करना है. It is more than 5. It is 5.94. So leading will increase by 1. Leading digit will increase by 1. लिख लो. Done. Okay. Next is third. If rounding of digit is 5. ये तो गया less than 5, more than 5. Now if जिस digit को round off करना है वो 5 है, and 5 is followed by 0 or 5 is followed by no number. जैसे भी मान लो, I'll take this. If I so let's say our example, if I take, we have 4.750, 4.75, और let's say इसी में जो next है 4.650, 4.65. देखो यहाँ पे अगर rounding of digit is 5, तो यहाँ पे देखो significant figure यहाँ पे uncertain digit 5, इसको मुझे round off करना है. इसके बाद 0 हो चाहे 0 नहीं हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो अगर जिस नंबर को राउंड ऑफ, अगर 5 को करना है राउंड ऑफ और उसके पहले अगर ऑड नंबर है तो इट विल इंक्रीज बाय 1. 4.8 हो जाएगा, ये भी 4.8 हो जाएगा. अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट इज 5 फॉलोड बाय 0 और जस्ट 5 no 0, then leading digit is even, then it remains same 4.6. This is also 4.6. It remains same. Okay. तो अगर 5 को ड्रॉप करना है, लीडिंग इज ऑड नंबर, इट विल इंक्रीज बाय 1. 5 को ड्रॉप करना है, लीडिंग इज इवन, इट विल रिमेन सेम. ओके. ठीक है सर
हाँ, सर लेकिन फिर इसमें लॉजिक क्या है? मतलब 4.75 को भी 4.7 क्यों नहीं लिख सकते और 4.65 को भी 4.6 क्यों नहीं लिख सकते? नहीं देखो इसमें लॉजिक जो हम लोग जो 5 के लिए ये रूल जैसे ना यहाँ पे रूल मैं बोल रहा हूँ। रूल मतलब जो अपना मेजरिंग सिस्टम का जो कमेटी है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो IUPAC तुमने नाम सुना होगा, जो कि केमिस्ट्री के लिए SI यूनिट्स का तुमने नाम सुना होगा। तो दैट इज द रूल गवर्न बाय द कमिटी ऑफ द साइंटिस्ट, कि यही रूल फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होगा। ठीक है ना, तो इट इज जस्ट अ रूल यहाँ पे, ये ऑड और इवन। और इसके अगर कैलकुलेशन पार्ट में जाना है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी जस्ट टेक दिस एज अ रूल। ओके जो यस सर। क्योंकि फिर अपने को अभी जैसे हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के लिए भी अलग अलग हम लोगों ने किया, उन्होंने लिखा हम लोगों ने, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट उन्होंने फाइनल रूल लिख लिया। अगर तुमको उसको हर एक को प्रूफ करना है, तुमको कैलकुलेशन फिर करना होगा कि किससे अपना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इसलिए द लास्ट वन, थर्ड फोर्थ, अगर if if the rounding of digit is 5 and it is followed by some number, ठीक है, then leading digit is always going to increase by 1, either it is odd or even। जैसे भी मान लो 15.352, मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है, इट इज फॉलोड बाय सम नंबर, चाहिए 15 और लेट्स से इट इज 9.453, तो मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, and 5 is followed by certain number, so leading digit will increase by 1, either it is odd or even, it will become 15.4, it will become 9.5। ठीक है everybody? ओके तो ये 4 रूल्स हैं। अभी लेट्स राइट अ क्वेश्चन, राउंड ऑफ। फोर्थ रिपीट करो ना एक बार। अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट इज 5, यहाँ भी था 5, यहाँ भी 5 है, बट यहाँ पे 5 फॉलोड बाय 0 था, या 5 के बाद कुछ नहीं। लेकिन इसमें क्या है, 5 फॉलोड बाय अ नंबर 2 3 एनी नंबर, नॉन जीरो डिजिट नंबर, नॉन जीरो डिजिट, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। अगर ऐसा है तो लीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, आइदर ऑड और इवन। ओके Sir, यस। sir, if 5 is followed by 0 and then another number. नहीं तो हम लोग राउंडिंग ऑफ हम लोग किसका कर रहे हैं, जो अपना सिग्निफिकेंट फिगर जो लास्ट का है, मतलब जो लास्ट का नंबर है उसको। ठीक है, हाँ अगर ऐसा कुछ है तो तुम खुद से तुम ये करो, क्या होगा अगर कुछ ऐसा अगर करना है तो क्वेश्चन में आता है, फिर रुक जाओ, फिर जो तुमने क्वेश्चन पूछा वैष्णवी वो आता है क्वेश्चन में। प्लीज राइट राउंड इट ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड इट ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन है, फर्स्ट है क्वेश्चन 0.05857, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तुमको राउंड इट ऑफ करना है।
Yes, done. Yes, let me ask. I think we have done up to Samruddhi. कृषि बताओ तो इसका क्या होगा? अप टू 2 से अभी इसका कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? कृषि Hello. कितना है इसका सिग्निफिकेंट फिगर? 4. और अभी इसको 2 तक लेके जाना है, तो मतलब क्या है, अपने को इसको ड्रॉप करना होगा, है ना? Yes, sir. तो ड्रॉपिंग किसको, अपने को 5 को ड्रॉप करना होगा, तो हाँ यस, टेल मी क्या होगा इसका राउंडिंग ऑफ? 0.058. 5 9 ना? Sir, if before 5 there is a odd even number, then it remains same, no? No, if dropping digit is 5 followed by non-zero digit, चाहे तो उसके पहले लीडिंग चाहे ऑड हो या इवन, इट विल इंक्रीज बाय 1. ये देखो, Yes, yes, yes. Yes, sir. ओके तन्वी बताओ ये सर और एक पॉइंट के बाद 0 है वो। कौन ये? यस नहीं, तो अपने को 2 सिग्निफिकेंट तक ही करना है ना, तो ये तो अपने पास ये टोटल 4 है, अपने को 2 तो देखो, सॉरी हाँ यहाँ पे 0, राइट, छूट गया वो। हाँ सर, लेकिन अभी राउंड टू डेसिमल प्लेस करना है तो सिर्फ 0.05 नहीं आएगा। 2 नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है राउंड ऑफ, 2 डेसिमल प्लेस नहीं। हाँ तन्वी इसका बताओ। 0.058. 0.058, राइट, तो वी हैव टू ड्रॉप 3 को ड्रॉप करना है, तो लीडिंग डिजिट विल नॉट चेंज, 3 इज लेस देन 5। यस सम्यक, इसको 5.1. 5.1 to 10⁻⁶। हमें इसको 5.0 ओनली, 0 तब तो फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे ना, हमें अपने को 2 तक ही करना है अपने को, तो 5.0 ओनली। I hope you okay. Next is, how do we do the calculation based on significant figure? Sir? Yes. 5.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो गए? रूल नंबर ये करो ना, देखो तो जो ट्रेलिंग 0 का रूल है उसका चेक करो। हाँ। क्या है बताओ? हाँ सर, आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर मतलब 0 आते तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर है। राइट, नाउ अभी तो ये तो हो गया, अभी मान लो लेट्स अज्यूम इट कि मैंने अपने पास एक स्क्वायर है और लेट्स से रेक्टेंगल है, इसका दिया है 1.056 मीटर, इसका है लेट्स से 1.56 मीटर इसका, और इसका है 1.02 मीटर और 1.2 मीटर। मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड, दैट इज देयर। क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर और दिस रेक्टेंगल कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड। तो अगेन अगर तुम ऐसे पहले 9th 10th में तुम कैलकुलेशन कर रहे होते तो फिर क्या होता था, वहां पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पे ध्यान नहीं देते, हम लोग क्या हम लोग करते, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, यही ना, दैट इज पेरीमीटर। तो क्या आ जाएगा, 2 into 1.56 प्लस 1.2, तो 2 into 1.76, तो कितना आ गया, 12 4 5 2। सर 2.76 ना? तो देखो अगर हम लोग पहले से हम लोग करते, हाँ तो एक से आते हैं हम लोग सर अगर हम
2 हाँ। into 2.76. नहीं इतना आता ना पेरीमीटर। हाँ सर 1.56 प्लस 1.2 2.76. हाँ तो ये कितना जाएगा 4 5 आ जाएगा ना। देखो ये तो देखो अगर हम लोग 9th 10th में अगर ये क्वेश्चन होता है 8th में 7th में तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसके लिए 2, विच इज मोर एक्यूरेट। तो Two. दिस इज मोर एक्यूरेट। सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स एक्यूरेसी इज हाई, तो दिस इज मोर एक्यूरेट। So and this is less accurate. Okay everybody, so when we do the calculation based on significant figure, then the final result will not be more accurate than the less accurate experiment. मैंने यहाँ पे इसके लिए लेंथ के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो कितना आ रहा है 1.56, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके लिए किया तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो दिस इज लेस एक्यूरेट। तो फाइनल रिजल्ट भी जो लेस एक्यूरेट है उससे ज्यादा एक्यूरेट हो नहीं सकता। गेटिंग एवरीबॉडी? तो मींस फाइनल रिजल्ट में भी यू विल हैव टू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। अगर फाइनल में मान लो 3, अभी जैसे इसमें देखो, इसमें कितना आ गया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 3, ठीक है सबको। तो मैंने लेस एक्यूरेट रिजल्ट लिया है और उससे मुझे मोर एक्यूरेट फाइनल कैलकुलेशन आ गया, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। गेटिंग दिस एवरीबॉडी? हेलो? Yes, sir. If we have taken less accurate experimental result observation, then final calculation will not be more accurate. If you want to have a more accurate final result, then your calculation should be more accurate. Yes, all of you. So here just see, the breadth has got 2 significant figure, length has got 3, so this is less accurate. And the final result of the perimeter is more accurate than the less accurate. फिर तो ये काफी अच्छा होता है कि हम लोग कुछ भी फाइंड करते हैं और कैलकुलेशन के बाद अपना एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सर अगर 1.2 को 1.20 कंसिडर करें तो? हाँ, देन इट विल बी मोर एक्यूरेट, राइट, इट विल बी मोर। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटर ने जो मुझे दिया है रिजल्ट, वो दिया है ये, समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंटर ने मुझे जो दिया रिजल्ट वो ये दिया है, मींस हियर जो लेस एक्यूरेट नंबर है उससे मोर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकता। तो दैट इज द basis of the calculation based on significant figure. That is means calculation based on significant figure, huh? So the final result will not be will be always will not be more accurate than the observation which is taking part in the calculation. So here the length is taking part in the calculation, breadth is taking part in the calculation. So final result will not be more accurate than this. So final result is going to be around this only. वो 3 significant figure नहीं हो सकता. Okay everybody? And that is the basis for the calculation based on significant figure. सर मतलब उसको राउंड ऑफ करना है क्या? अभी नहीं करना है, लास्ट में। हाँ, तुमको ये सॉल्व करना है यहाँ तक, अभी नाउ इसको तुमको अभी राउंड ऑफ करना होगा। कहाँ तक? 2 सिग्निफिकेंट तक। तो फिर क्या होगा? Now just see, it is this digit has to be dropped. Clear? So it is less than 5, so leading will not change. It is 5.5 only. So this will be the final answer of this question based on significant figure.
सर मतलब अगर उधर 1.20 दिया होता तो मैं राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं थी ना। राइट, अगर 1.20 दिया होता तो वी नॉट रिक्वायर्ड टू राउंड इट ऑफ. तो फाइनल रिजल्ट will not be more accurate than the observation which is taking part in the calculation. I think ये समझ में आ रहा है सब, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने ये ले लिया तो देखो यहाँ पे 5.5 और 5.5, तो obviously 5.52 is more accurate, but 5.5 is not more accurate. And ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने एक्सपेरिमेंट तुमने लेस एक्यूरेसी से किया है और कैलकुलेशन के बाद तुम्हारा रिजल्ट मोर एक्यूरेट आ जाए. It is not possible. Okay, everybody. sir. And that is the basis of the calculation based on significant figure. So please give the heading significant figure calculation. How do we do significant figure calculation? सर मतलब जो फाइनल आंसर जो आता है उसे लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड ऑफ करने के. हाँ, तो जो भी ऑब्जर्वेशन उस कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका देखो उसमें सबसे लेस एक्यूरेट कौन सा है, लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है. तो लेस सिग्निफिकेंट वाला ऑब्जर्वेशन तुमको उसमें तो वही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में आएगा. मतलब लेस एक्यूरेट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वही तुमको फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होगा. तो दैट इज अ डिफरेंस between the same question if you would have done in 8th standard and now if you are doing in 11th standard. Okay, everybody? Yes, sir. Yes. Yes. Bolo. So please write one statement here. When we do the calculation, using measured values, then the result cannot be more accurate. Then result cannot be more accurate than any of the measured value. अभी देखो एडिशन का हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है. एडिशन है तो फर्स्ट एडिशन में हम लोग जैसे मान लो अपने को ऐड करना है 2.29 प्लस 62.7, ठीक है. इसको मुझे ऐड करना है. इसके दो वे हैं इसको करने के, दो वे से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक तो तुम देख लो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसका भी है 3. इनको तुम नॉर्मल वे से ऐड करो तो क्या आएगा देखो 9.64. इसमें कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया. देखो तो लिया था उन्होंने 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3 लिया था, अभी हो गया 4. मतलब एक्यूरेसी बढ़ गया which cannot be done. कैलकुलेशन से कभी एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं होगा. एक्यूरेसी कब इंक्रीज होगा when you do the accurate experiment, when you do the accurate observation. तो मुझे इसको फिर कन्वर्ट करना है किसमें 3 में. We have to convert this into 3.
3 significant figure, so I will have to drop this 9. तो फिर क्या हो जाए, तो ये this will increase by 1, तो क्या हो जाएगा 6 5 and ये zeros आ जाएगा. देखो ये 65 it will become 0. तो now just see it has become 3 significant figure. तो लिया था 3, आ भी रहा है 3, that is okay. This is one way of doing. ठीक है everybody. सेकेंड वे क्या है, देखो यहाँ पे पहले बाद में लिखना 2.29 डेसिमल प्लेस के बाद जितने डिजिट्स है उसको तुम लिख दो. दिस इज 7, उसी लाइन में लिखो 7, दिस इज 2, दिस इज 6. ऐसे भी हम लोग करते हैं. तो यहाँ पे देखो इसको तुम पहले ही तुम ये करो. देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको तुम 1 में कन्वर्ट करो इसको, तो क्या आ जाएगा 2.3 आ जाएगा. इसको ड्रॉप करना है तो दिस विल इंक्रीज बाय 1 और ये आ जाएगा 62.7. इसको भी ऐड करो, दैट इज 65.0. देखो सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस कि डेसिमल प्लेस के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको 1 में कन्वर्ट करो. इसको 1 में 6 2.29 को, तो 29 को 1 में, तो 2.3 हो गया. यहाँ पे 62.7. ठीक है. either you go by this way or you follow this method. Same for subtraction. Subtraction में भी सेम चीज करना है. लिख लो ये, write it down everybody. डन, लिख लिया तुमने. Yes, sir. सब्सट्रैक्शन में थोड़ा सा डन एवरीबॉडी. ओके. सब्ट्रैक्शन में भी सेम करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 1-2 बार तुमको एक्सेप्शन भी आते हैं वहां पे कि अगर तुम 2 काफी नियर डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो देन देयर सिग्निफिकेंट फिगर इज लॉस्ट. जैसे मान लो कि तुम अगर 2, अभी मान लो कि तुमने इसको किया सब्ट्रैक्ट 62.7 माइनस लेट्स से 82.29 माइनस दिस. इसको ये करो सब्ट्रैक्ट एवरीबॉडी. 82.29 माइनस 62.7 सब्ट्रैक्ट करो. $19.59. रॉन्ग. अभी तुम 11th में आ गए हैं, ये ध्यान में रखो. 98.59. अभी तुम लोग 11th में आ गए हैं, अभी 8th में नहीं हो. You have to keep eye on significant figure also. 19.6. Right. 19.6 आएगा. वैसे एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है ना, आई नो, लेकिन तुम अभी 11th में आ गया. ठीक है. आई नो कि तुम लोग को शायद फीलिंग नहीं आ रहा हो कि अरे हम लोग पास भी हो गए क्या, ऐसा. देखो तो क्या किससे करना है, सेम वे करना है. आइदर यू डू दिस फर्स्ट, तो ये कितना आ जाएगा बेसिक मेथड से 9, ये हो जाएगा 5, ये 4, 9, 1, ये हो गया. देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें 3 है, तो
फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा, ठीक है। तो जो सबसे लेस वाला है वो आएगा, तो इसको तुम ये करो, राउंड ऑफ करो, तो 5 को तो अपने को 9 को ड्रॉप करना है, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा 9.6, या फिर ऐसे करो 82.29 और 62.7, तो इसको तुम पहले इसी को तुम 82.3 plus 62.7 हाँ minus तुम इसी को पहले तुम ये कर दो, तो आफ्टर डेसिमल प्लेस यहाँ भी एक ही लेके, यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक लाओ, तो 82.3 हो जाएगा, फिर 62.7, तो देन सब्ट्रैक्ट करो, 16 6 हो जाएगा 19। ओके सर, हम्म ये जो अभी हम कर रहे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, मतलब आगे जो भी लेसन्स हो गए, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, उन सब में भी ये इसका एप्लीकेशन है क्या? नहीं, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है कि कीपिंग आई ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, तभी ये तुमको करना है, ऐसे नहीं। उसके अदरवाइज तुमको नॉर्मल कैलकुलेशन ही तुमको करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देन यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक ये भी है क्या, जैसे यहाँ पे दोनों जो थे डिजिट दूर दूर थे, लेकिन अगर पास पास के ये डिजिट, जैसे मान लो कि 3.28 माइनस 3.23, अगर if digits are very close and if you subtract them, then significant figure get lost. तो अब जैसे इसको तुम ये करो subtract, 0.05 तो देखो यहाँ पे accuracy will get lost, कितना आ रहा है, देखो 0.05, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे कितना था 3, तो ये करेक्ट है, लेकिन accuracy एकदम, बिकॉज फाइनल रिजल्ट हमेशा इससे कम या उसके इक्वल है तो बहुत अच्छा है, उससे कम आ गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी हैज बीन लॉस्ट हियर, बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट फिगर से एक पे हम लोग आ गए, तो इट इज लेस एक्यूरेट। हाँ, मोर एक्यूरेट हो नहीं सकता, लेकिन लेस एक्यूरेट हो सकता है। सेम फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, वहां भी तुमको वही देखना है कि जो लेस सिग्निफिकेंट फिगर है, फाइनल रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा, इन मल्टीप्लीकेशन, इन डिवीजन आल्सो। जैसे लेट्स से इफ आई आस्क यू फाइंड दिस 1.3 into 1.2, इसका बताओ क्या आएगा, कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड। 1.6 सॉरी 2.6 मल्टीप्लाई करना है, 1.6 कितना आता है पहले ये बताओ, एक्चुअली आता कितना है दिव्यांशी? 1.56 1.56. 1.56, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दिस हैज टू बी 2 ओनली, तो सिग्निफिकेंट फिगर हैज टू बी 2, तो क्या आ जाएगा, तो दिस इज 1, वी हैव टू ड्रॉप दिस, 1.6 आ जाएगा। ओके now try this, 3500 divided by 7.52. First you solve it by the basic method only, then you do the round off at last. ये करो, ये और सेकंड फिर ऐसा 3500 मीटर by 7.52, इसको भी करो, solve both.
डन। यस सर। फर्स्ट में कितना आया, मतलब एक्चुअल कितना आया बताओ फर्स्ट में? 465. तो 465.42। 42. तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 470. देखो यहाँ पे मोर लेस एक्यूरेट चाहिए तुमको, तो देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो फाइनल रिजल्ट विल हैव अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। एवरीबॉडी, अपने को ड्रॉप करना है कौन सा, फिर देखो अपने को ये ड्रॉप यहाँ के बाद अपने को ड्रॉप करना होगा 5 के बाद, ठीक है? तो दिस विल इंक्रीज बाय 4, इट विल इंक्रीज बाय 1, और लेकिन 47 लिख नहीं, बिकॉज ये 465 है, तो 47 लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे 0 4, बिकॉज उसके पास होना चाहिए, 465 के पास का कोई वैल्यू होना चाहिए, तो 470 इज द फाइनल आंसर विथ कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड। ठीक है एवरीबॉडी, देखना ये। इसमें क्या होगा, कौन कौन बताएगा? लेट मी आस्क, वैष्णवी बताओ तो। इसका अगेन ये और ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखा है मीटर, Sir, 465. तो फाइनल रिजल्ट तो 465.42 ही आएगा, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें 4 हो गया। आई होप ये सबको याद है ना, यूनिट आते ही ट्रेलिंग जीरो इज आल्सो काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल रिजल्ट विल हैव अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होल, तो अपने को यहाँ के बाद ड्रॉप करना होगा 42 के बाद, तो इट इज लेस देन 5, तो इसका क्या हो जाएगा 465 मीटर, तो करेक्ट वैष्णवी। देखो तो ओके। तो क्वेश्चन इज, प्लीज राइट, क्वेश्चन लिखो एक। डन एवरीबॉडी, गेटिंग? Okay, write a question. Question is, calculate area enclosed by the circle. Calculate area enclosed by the circle of diameter 1.06 meter. To correct number of significant figure. To correct number of significant figure. Please do it quickly. तो आसान सा क्वेश्चन है, तुमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे।
लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर अटैच हो गया, बस यही और कुछ नहीं। Sir, can you please repeat the question? यस समृद्धि, कैलकुलेट कॉल से कुछ हो गया होगा इसलिए उनकी आवाज तब नहीं आ रही होगी। क्या सम्यक, कैलकुलेट एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल। समृद्धि आ रही है आवाज? Yes, sir. Calculate area enclosed by a circle of diameter 1.06 meter. To correct number of significant figure. To a correct number of significant figure. तो आसान क्वेश्चन है। क्या आएगा बताओ? आया? Do it quickly. सर 0.88 मीटर स्क्वायर। 0.88. 0.88। अच्छा तुमने ये कितना लिया पाई का वैल्यू? 22/7। 3.14. 3.14. यस, टेक 3.14। हाँ वैष्णवी कितना है फिर से बोलो। 0.882 राइट, मीटर स्क्वायर। 0.882। देखो इनिशियल जो है आई थिंक अगेन देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस डायमीटर दिया हुआ है कितना 1.06 मीटर। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। तो इफ यू फाइंड द रेडियस so that is 1.06 by 2 so that is 0.53। तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होगा। सिर्फ तुमने 5 से लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। गेटिंग एवरीबॉडी? बिकॉज बाय चेंजिंग द by doing the calculation of a unit it will not change the significant figure। इनिशियली इतना है तो यहाँ भी इतना ही होगा। अगर किसी ने ऐसे लिखा है 0.53 तो रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। तो तुमको लेना है 30 ही लेना है। उसके बाद पाई का वैल्यू मैंने लिया 3.14। तो एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया 3.14 इंटू 0.530 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। फाइनल आंसर विल हैव अ सिग्निफिकेंट फिगर 3 बिकॉज यहाँ पे बोथ आर 3 3। ठीक है, तो आई थिंक फाइनल आंसर जो है मेरे पास है वो इतना आता है एक्यूरेटली 0.882026 मीटर स्क्वायर। देखो इतना है। तो इसमें कितने हो गए, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो क्या आएगा, तो मुझे यहाँ के बाद मुझे ड्रॉप करना होगा। इसका ड्रॉप किया तो 0.882 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. Yes, sir.
So this is all about the significant figure. Next day we'll see the trigonometry in physics in next class on Thursday. Thursday we'll have a physics again. So we'll see trigonometry in physics. Okay, and then we will go for the actual physics topic. इस पे मैं होमवर्क में ग्रुप में मैं कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है? तो go through that. Okay, those homework I'll upload in the group and I'll send through the WhatsApp to solve those questions. बोलो. हेलो, बोलो. ठीक है, तो so that's all for today, and we'll meet tomorrow is maths. Okay, 2 o'clock only, and follow the schedule that we have given. So we'll meet again. Tomorrow join for maths, and day after tomorrow again we'll have a chemistry. ठीक है, everybody? Any doubt, any question if you have? नहीं सर. Tanvi? No, sir. Ame? No, sir. Rishi? No, sir. Okay. Samruddhi? No, sir. Sia? Sir. Divyanshi? No, sir. Isha? No, sir. Joy? No, sir. Joy is in joyful mood. Huh? Tanmay? नहीं सर. Abhijit? No, sir. Ame? No, sir. सम्यक का फिर इशू है इसका नेट का. ठीक है, एनीवे, so we'll meet tomorrow for the maths. Okay. चलो फिर then. Bye everybody. Bye, sir. Bye. Bye. Thank